Hello and welcome to Speak Up Q&A. Thank you so much for connecting. Now it's the time for you to come and speak up on the topic that you want to, because it's lots that is happening in Maharashtra. There's a government change, now a new chief minister and new political alliance. What is the impact on Sushant Singh Rajput case? What is the impact on Disha Salian case? जिस पर भी आपका मन करे आप आकर बोल सकते हैं. मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर किया है. जिन लोगों को कनेक्ट करना है, they can use the link and get connected. I'm just waiting for all of you to come and be part of the discussion that we are having today, focusing on Sushant Singh Rajput. That's because there is a change of government in Maharashtra. Now, Mr. Uddhav Thackeray is not the chief minister. The man on your screen, that is Mr. Eknath Shinde, he is the chief minister, and Mr. Devendra Fadnavis is the deputy chief minister. It is for them now to decide things in Maharashtra, and it is your chance to tell them what you want from them, because your expectation or your opinion is what will matter as far as the BJP and Shiv Sena is concerned. वो वही करेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिकली उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और न शिवसेना और न बीजेपी ऐसा चाहेगी. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल टू कनेक्ट, quickly connect, so that we can start our conversation. We are focusing on Sushant Singh Rajput case and the impact of the new government on both Sushant Singh Rajput and Disha Salian case. So there is a change of the government. Mr. Shinde is taking over, and also Mr. Devendra Fadnavis is taking over. What will be the impact on Sushant Singh Rajput case? That's the question that we are asking. क्या कुछ बदलेगा? आपको लगता है बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा तब भी, नहीं बदलेगा तब भी. आप आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं इस पूरे रिजीम को लेकर. So that is what we are focusing on the show tonight. Please connect quickly. I'm just waiting for you to come and connect, because Speak Up Q&A we are doing after a long time. Whatever topic you want to speak, whatever thing that has happened during the last 10 days, उसमें से जिसको भी लेकर आप बात करना चाहते हैं, आप आकर बोल सकते हैं, and you can give your opinion and we will discuss it further. मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया. I hope all of you found that logical, and you will always patronize this platform, because this platform belongs to you and wants to do things the way you expect it to be, without crossing the line of control. We don't want to cross the line of control. Issue is saying there are a handful of SSRians. They don't care about us. That's what she's saying. So there are only a handful of SSRians who are there and they don't care about us. I am finally saying this, that nothing will happen. I am finally done. I do not think so. Just monitor it for some time. You don't jump to the conclusion, because end of the day, अगर कोई अकेले भी होता है ना, तो भी चीजें होती हैं. ये मान लेना कि पूरा एक कैंपेन होगा तभी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है. आप अकेले भी कारवां में चलेंगे तो कारवां फिर भी बढ़ता है और चीजें फिर भी होती हैं. लेकिन आपका कन्विक्शन मैटर करता है कि आपका कन्विक्शन कितना है. कन्विक्शन जो मैं जून 2020 में देखता था, जो जुलाई 2020 में देखता था, आज नहीं देखता. आज लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं. बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उनमें से बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी चीजों पर होते हैं. एक ही चीज को शायद कई बार परोस दिया जाता है. आप लोग उससे अपसेट होते हैं, लेकिन लॉजिक तो है. और लॉजिक ये है कि सुशांत सिंह राजपूत केस is not a simple case of suicide issue. You should be mindful of this. मैंने कई बार कहा है आपको, और आप लोगों में से बहुत लोग लगातार कनेक्ट करते हैं, आप भी कनेक्ट करते हो, और मैंने बार बार बोला है कि ऑलवेज डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट जस्टिस टू हैपन इमीडिएटली. डायरेक्ट जस्टिस को होने में बहुत टाइम लगता है. आपको ये जानने में कि ये क्या हुआ सुशांत, शायद आप जान भी लेंगे, लेकिन उसके जानने के बाद भी उसको सजा मिलने, उसको पनिशमेंट होने में बहुत वक्त लगता है, और वो कन्विक्शन पे होता है. लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पोएटिक जस्टिस. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट फॉर लास्ट 2 years. आप अगर एनालाइज करेंगे ना, दैट देन यू विल नॉट से आई एम डन, बिकॉज वन आफ्टर अनदर देयर हैव बीन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जहां कोई कुछ नहीं बोल रहा था, फिर भी चीजें होती गई. द फॉल ऑफ उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल है या क्या है, उसको छोड़ दीजिए. इज इट सो सिंपल? इज इट सो सिंपल?
कि Uddhav Thackeray, the man who's the most important person in Shiv Sena, resigns. A government which enjoys the support of 170 MLA suddenly goes. और गया कौन? उद्धव ठाकरे. आए कौन? एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदे कौन है? कोई नहीं जानता. कल तक कोई नहीं जानता था. फिर उद्धव ठाकरे गए क्यों? पावरफुल थे, चाहते तो बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन चले गए. व्हाई? थिंक ऑफ इट. मैंने आपको कहा था 10 दिन पहले ही, अभी तक आपने बाकी पोएटिक जस्टिस देखा है. वेट फॉर इट. दिस इज योर टर्न टू सी अ पोएटिक जस्टिस हियर. आप इसको निगेट मत करो, बिकॉज ऑलवेज जस्टिस इज नॉट टू नो और टू गेट टू नो कि क्या हुआ. जरूरी थोड़ी है कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही हुआ. नहीं जरूरी है. जैसे इनको नहीं मालूम कि पोएटिक जस्टिस भी कोई चीज होती है, लेकिन इनके साथ हो रहा है ना. हर एक शख्स के साथ हो रहा है. कोई एक शख्स नहीं है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में आया हो और उसको नुकसान नहीं हो रहा है. बॉलीवुड का भट्टा बैठ गया है. किसने बैठाया? वो बॉलीवुड जो सितारे जो चमक रहे थे, दुनिया भर में घूम रहे थे, ग्लोबल शोज कर रहे थे, आज कहीं नहीं है. किसने किया? अगर पोएटिक जस्टिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है ना, तो वो है बॉलीवुड. आज उनकी फिल्में पिट रही हैं, चल नहीं रही हैं, ये कुछ भी करने को तैयार हैं, दाढ़ी बढ़ाने को तैयार हैं, पुष्पा की तरह दिखने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं. क्यों? व्हाई? एट एनी कॉस्ट हमारी फिल्में देखो. वो कार्तिक आर्यन जिसको करण जौहर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसकी एक फिल्म हिट क्या हुई? उसने 200 क्या कमाया? 200 करोड़. मिस्टर करण जौहर को याद आ गई कि कार्तिक आर्यन कौन है, उसके को अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया. अब डोंट ब्लेम कार्तिक आर्यन फॉर दैट, बिकॉज कार्तिक आर्यन वुड ऑलवेज वांट बिजनेस. व्हाई विल ही नॉट वांट? ही इज अ यंग मैन. व्हाई विल ही नॉट like to do more movies? Like Sushant Singh Rajput wanted to do movies, he was not given. That's a different issue. But Sushant wanted to do movies. So why will Kartik Aaryan not want to do movies? मतलबी कौन है? मतलबी वो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने कल उसको डंप कर दिया. हम दोस्ताना नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे, हम वो नहीं बनाएंगे, हिज एटीट्यूड इज नॉट करेक्ट, ही इज अनप्रोफेशनल. सबने कह दिया. शाहरुख खान ने भी कहा, करण जौहर ने भी कहा. लेकिन आज उसी को भगवान मान के बैठे हुए लोग उसी को अपने पार्टी में बुला रहे हैं. क्यों भाई? बिकॉज ये मतलब ही है. तो इस बॉलीवुड को आपने घुटने पे लाके रख दिया. क्या ये जस्टिस नहीं है? क्या ये सुशांत के कारण नहीं हुआ? हर एक चीज, किसी चीज को उठा लीजिए, हर बार लगातार आपको जस्टिस मिला है. आप जस्टिस को अपने एक्सपेक्टेशन से मत जोड़िए. अपना कोई टाइम फ्रेम मत फिक्स कीजिए. ये मत बोलिए कि मुझे इतने दिन में ही जस्टिस चाहिए. That is unfair. That is not being genuine to the cause. आप जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है. हो सकता है वैसा नहीं है, तो क्या आप नहीं मानेंगे उसको? अरे भाई मानेंगे, प्रोवाइडेड यू हैव आंसर्स टू द क्वेश्चन. आप लॉजिकल पीपल हैं, आपको आंसर्स चाहिए. तो क्या वो आंसर्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं. जिस दिन मिलेंगे आप कन्विंस कर दो. 1000 बार बोला है. चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सुसाइड. चलिए कन्विंस कर दीजिए. कन्विंस कर दीजिए ना. सारे सवालों के जवाब दे दीजिए, मान लेंगे. लेकिन बगैर सवालों के जवाब दिए नहीं मानेंगे. सिद्धार्थ पिठानी को लेके सबसे ज्यादा सवाल उठाए, राइट? कहां है सिद्धार्थ पिठानी? जेल में. रिया चक्रवर्ती को लेके इतना सवाल उठाए, कितनी फिल्में मिल गई? चेहरे के बाद कौन सी फिल्म मिल गई? कह दिया ना, बॉलीवुड ने उस टाइम पूरे कैंपेन में कहा हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, वी विल बैक रिया चक्रवर्ती. वेयर इज हु इज बैकिंग रिया चक्रवर्ती? which movie has she got? How many movies has she got? रिया चक्रवर्ती ने बोला था कि मेरे करियर को खराब किया जा रहा है, मेरा करियर बर्बाद हो रहा है. ऐसे नहीं बोला था. बॉलीवुड ने तो बहुत सारे वायदे किए थे. बॉलीवुड प्रॉमिस्ड अ लॉट टू रिया चक्रवर्ती. हाउ मच हैव दे गिवन? ये इंडस्ट्री मतलबी है. और रिया चक्रवर्ती आज कहां है? अपने घर में रहती हैं और एक आध एड मिल जाता है या एक आध पार्टी में चली जाती है, बिकॉज शी हैज टू सर्वाइव. सो फिल्म कौन सी मिल गई बताइए? जैसा आप करते हैं वैसा ही आप भरते हैं. कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सवालों के घेरे में नहीं है. कोई भी जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में, सुशांत के लाइफ में कुछ भी गलत किया है, उस शख्स का पर्सनैलिटी बोलिए, ऑरा बोलिए, स्पिरिट बोलिए, इतना स्ट्रांग है कि वो सब कुछ खुद अचीव कर रहा है.
नो नीड फॉर एनीबॉडी. सो अगर सब लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, फिर भी चीजें हो जाएंगी. क्यों? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज डूइंग इट. दिस इज व्हाट आई बिलीव. सो हाउ मेनी टाइम्स हैव आई सेड दैट आई डोंट वांट टू फॉलो इट. मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेट्स क्लोज दिस. कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से, कभी किसी ने प्लेटफॉर्म पे डाउट कर लिया इसलिए, कभी किसी ने कोई रीजन से. बट डिड द मूवमेंट स्टॉप? हैव आई स्टॉप्ड कवरिंग इट? नो, बिकॉज देयर इज अ न्यूज इन इट. जब तक न्यूज है तब तक मैं हूं. जब न्यूज नहीं रहता है, मैं नहीं रहता हूं. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में 2 साल हो गए, न्यूज खत्म नहीं होता है. ऐसा कैसे हो सकता है? टेल मी. अगर मैं डिसाइड भी करूं कि मैं इसको कवर नहीं करूंगा तो वैसा नहीं होता है, बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट. एंड इफ आई एम फॉलोइंग अ स्टोरी, then I am following a story, and if there is news in that story, why will I leave it? सुशांत सिंह राजपूत केस में न्यूज खत्म नहीं होता है. Is that not sufficient to indicate that something is happening? वरना इस केस को बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था. सुशांत सिंह राजपूत के नाम को गुमनाम हो जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी. यही कहानी है सुशांत सिंह राजपूत की. मुझे ये सब चीजें आप लोगों को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं. आप ही लोग कैंपेन चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूं. मैं तो और बहुत सारी स्टोरीज करता हूं. जब आता हूं आपको आपसे इस टॉपिक में बात करने तो अपनी बात बोल देता हूं. लेकिन फैक्ट ये है, सुशांत के केस में जो कुछ भी हो रहा है वो ऑटो मोड में हो रहा है. किसी के चाहने से कुछ नहीं हो रहा है. सब कुछ ऑटो मोड में हो रहा है. और जितनी बार आपको मिला है पोएटिक जस्टिस, वो आपकी मेहनत के कारण नहीं मिला है. उसके अपने ही कर्मों के का फल मिल रहा है. जो जो वो प्लान कर रहा है, जो जो वो डिजाइन कर रहा है, उसके हिसाब से मिल रहा है. ऐसा स्पिरिट होते हैं दुनिया में, ऐसा होता है. तो ही मे हैव डन समथिंग गुड. उसने 15 गर्लफ्रेंड बनाई या 50 गर्लफ्रेंड बनाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो दिल से जेन्युइन है और किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा. आज वो नहीं है, बावजूद उसके उसके जो कुछ भी, जिसने भी उसके लिए कुछ भी किया, आज वो सब सफर कर रहे हैं. एंड ही इज द किंग ऑफ योर हार्ट. सुशांत जाने के 2 साल बाद भी आप लोगों के दिल में जिंदा है. आप लोगों के लिए किंग बन के बैठा हुआ है, आपका हीरो बन के बैठा हुआ है. छोटी चीज है. यहाँ लोग आते हैं, फिल्में के फिल्म करते रहते हैं और फिर भी नहीं बन पाते हैं स्टार, फिर भी हीरो नहीं बन पाते. यहाँ एक एक्टर है जिसने सिर्फ 12 फिल्में की और वो रूल कर रहा है बॉलीवुड को, जाने के 2 साल बाद भी. ऐसा कौन सा स्टार होता है? सुशांत सिंह राजपूत के कंटेम्पररी हैं राजकुमार राव, राइट? राजकुमार राव ने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली हैं सिर्फ इतने वक्त में. क्या राजकुमार राव उतने पॉपुलर हैं जितने सुशांत सिंह राजपूत? आर पीपल टू पीपल talk about Rajkumar Rao so much as they talk about Sushant Singh Rajput? Is Rajkumar Rao having the same following as Sushant Singh Rajput? इससे पहले बहुत सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई. क्या लोग उनके लिए खड़े हो गए? इस तरह से कोई नहीं खड़ा हुआ. तो सुशांत के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं आप लोग? कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी. थिंक ऑफ इट ना. ये आग अभी क्यों जली? सुशांत के केस में ही क्यों जली और जले जा रही है? लोग जस्टिस मांगे चले जा रहे हैं. और भी तो केसेस हुए पहले, तब तो कोई खड़ा नहीं हुआ. आज ही क्यों खड़ा हो गया और 2 साल तक खड़ा है और गिव अप करने को तैयार नहीं है? हाउ कैन यू कंक्लूड दैट आई एम डन विथ इट? बिकॉज द केस इज नॉट डन. यू स्टिल डोंट नो व्हाट हैव हैपेंड. क्या सुसाइड प्रूव हो गया? नहीं. आंसर इज नो. व्हेन द आंसर इज नो, वेयर इज द क्लोजर? वेयर इज द क्लोजर? मतलब मुझे नहीं मालूम कि मैं स्पीकअप Q&A आप लोगों के लिए करता हूं या उसमें भी मैं आप ही लोग से बात कर रहा हूं, आप ही लोगों की चीजों को लेकर. आप लोग आइए और ये चीज आप लोग बोलिए. इट्स नॉट माई जॉब टू टेल यू. आई एम ओनली शेयरिंग माई अंडरस्टैंडिंग एज जर्नलिस्ट. और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. वरना इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी कहानियां आज भी हम सुनते हैं सुशांत को लेकर. सुशांत में ये कमी थी, सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत के 50 गर्लफ्रेंड थी, ही वाज अ फ्लर्ट. सो व्हाट? व्हाट इज देयर टू बी डिफेंसिव अबाउट? वी आर लिविंग इन 2022. यहां लोग लिव इन रिलेशनशिप रख रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. सिंगल मदर जस्टिफाइड है बिकॉज दैट्स योर राइट. सिंगल फादर जस्टिफाइड है, वो भी सही है. तो फिर एक यंग आदमी अनमैरिड क्यों नहीं गर्लफ्रेंड रहेगा?
उसको पसंद आएगा जिसके साथ रहे, जिसके साथ नहीं पसंद नहीं रहे। फोर्स तो नहीं कर रहा है, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। उसने किसी को ये तो नहीं कहा कि नहीं मैं जबरदस्ती तुमको रखूंगा, ये तो नहीं कहा। जो लोग भी रहे उसके साथ अपनी मर्जी से रहे। एलिगेशन लगाया तो उस एलिगेशन का क्या हुआ? तो why will a person who is a bachelor and a young man not have girlfriends, or why should a girl not have boyfriends? It's their life. Who are we to decide? Are we running some moral policing center or what? Who are we to say that he was a flirt? Who are we to say that he was a drug, he used to take drugs? अरे अगर वो लेता भी था तो उसका पर्सनल लाइफ है ना यार। अगर उसके गर्लफ्रेंड थे 50 तो वो पर्सनल लाइफ है उसका। Who are we to judge? Why are we judging? Some actors, some actresses have 20 girlfriends or 20 boyfriends. How does it matter? Is it our business? It's none of our business. Sushant Singh Rajput was an actor. His job was to do movies. He gave you movies. You liked him because of that. He unfortunately died. And died under mysterious circumstances. It did not convince us. हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। आप सब लोग आज उसके लिए जान देने को तैयार हैं। आप सब लोग उसके लिए कैंपेन में लगे हुए हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। क्यों? उसने बोला था क्या? नहीं, आपने खुद किया। हर क्वेश्चन का जवाब तो खुद ही मिल रहा है ना। और क्या कह सकता हूं मैं आपसे? आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेट एंड सी व्हाट सीबीआई डज। अगर उस जस्टिस की बात कर रहे हैं तो यू वेट, हैव पेशेंस फॉर सीबीआई टू से इट्स अ सुसाइड, इट इज अ क्लोजर, देन यू से आई गिव अप। अगर इस देश में क्लोजर के बाद भी क्लोजर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, जिया खान केस क्लोज हो गया, मदर आई ओपन हो गया। आज की न्यूज है, सूरज पंचोली हैज filed a petition in the court saying that there should be a non-bailable warrant issued against Jia Khan's mother, Rabia Khan. Why? She is not appearing on dates and delaying the trial. So he wants her to be arrested for that. यहां पर केसेस साल दर साल पड़े रहते हैं। सच झूठ मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो केस बंद कर दिया था। जिया खान मदर राबिया खान केम एंड गॉट दैट थिंग रीओपन। आज भी वो लड़ रही। तो फिर अगर मानो क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दिया सीबीआई ने 1 मिनट के लिए और फैमिली कन्विंस नहीं है और फैमिली ने उसको चैलेंज किया कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट को, और कोर्ट ने कह दिया नहीं, री इन्वेस्टिगेट, तो क्या कैंपेन बंद? क्या आप लोग चले जाएंगे? क्या उसके बाद पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं रहेगा ना, कोई भी नहीं रहेगा, एक भी आदमी नहीं रहेगा इस कैंपेन में। अगर सुशांत को जस्टिस मिलना होगा तो वो जस्टिस मिलेगा, किसी की जरूरत नहीं है। नो, आई एम नॉट रिक्वायर्ड। मेरे जैसे जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी एक्टिविस्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी शख्स की जरूरत नहीं है। अगर जस्टिस मिलना होगा तो वो अपने आप मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आप लोग जो कर रहे हैं वो कीजिए, जो मिल रहा है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। बिकॉज जो आपको मिल रहा है एवरी सिंगल डे वो तो किसी भी केस में नहीं मिलता है। मैं बहुत सारे केसेस देख चुका हूं। व्हाट इज दैट रेप केस, फेमस रेप केस निर्भया केस को सॉल्व होने में और पनिशमेंट मिलने में 8 साल लगे। 8 साल तक पूरा कैंपेन चलता रहा, 8 साल तक पूरी मीडिया खड़ी रही। क्यों? व्हाई? Was she related to anybody? No, she had died. Her parents stood up और मदर फादर खड़े हुए और वो कैंपेन चलाया और जस्टिस मिली। नीलम कटारा, नीतीश कटारा की मदर, नीतीश कटारा was murdered by DP Yadav and Manu Sharma. मनु शर्मा वही हैं जो जसिका लाल केस में इन्वॉल्व थे along with the other guy. What is his name? Manu Sharma नहीं, DP Yadav son is some Yadav. So I'm just forgetting. So Manu Sharma के साथ he was involved in Tamarind court case, यानी जसिका लाल केस। और DP यादव के जो बेटे थे, अभी मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, he was the prime suspect in the death, in the murder of नीतीश कटारा। उनकी मदर यानी नीलम कटारा, he was the only son। नीलम कटारा खड़ी हुई, अकेले पूरा केस लड़ लिया और सजा मिल गई। He got life imprisonment। उपहार ट्रेजेडी,
शेखर कृष्णमूर्ति, नीलम कृष्णमूर्ति लॉस्ट देयर बोथ किड्स, दो ही बच्चे थे उनके, दोनों की उपहार ट्रेजेडी में डेथ हो गई। नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति ने पूरी लड़ाई अकेले लड़ ली। दे फॉट इट ऑल अलोन। अंसल को जेल में भिजवाया, आज भी अंसल जेल में है। जसिका लाल की सिस्टर सबरीना लाल, उसने पूरा केस अकेले लड़ लिया। मीडिया ऑलवेज सपोर्ट्स सच थिंग, ये मत भूलिए कि मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा। मीडिया, आप कुछ भी सोचे मीडिया के बारे में, फैक्ट ये है कि जब भी कोई केस हुआ है, हिस्टोरिकली आप निकाल के देखिए, कोई भी जस्टिस कैंपेन हुआ है, कोई भी केस हुआ है जो सालों चला है और जिसमें जस्टिस मिला है, बगैर मीडिया के कोऑपरेशन के, मीडिया के हेल्प के, मीडिया के सपोर्ट के नहीं हुआ है। मीडिया में दोनों तरह के लोग हैं। आप लोग एक परसेप्शन बना दीजिए सारे मीडिया वाले जो है ना वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। हर एक जगह दो सेट ऑफ पीपल होते हैं, एक अच्छे और एक शायद उतने अच्छे नहीं। तो मीडिया में भी कुछ लोग जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, आज भी हैं, और वो करते हैं हर एक चीज को लेकर। वरना मुझे अगर केवल व्यूज चाहिए ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं वीडियो बनाओ पैसा कमाओ। अगर मुझे पैसा कमाना होगा तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बॉलीवुड के वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी व्यूअरशिप ज्यादा है। मेरा दिमाग खराब हुआ कि मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप लोग से बात करता हूं पैसों के लिए नहीं। एक स्टोरी है मेरे लिए, उस स्टोरी का एक कंक्लूजन है, जब तक वो कंक्लूजन नहीं आता आई विल नॉट लीव द स्टोरी। दैट इज द वे आई हैव बीन टॉट एज अ जर्नलिस्ट। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनकी अपनी स्टोरी वो लास्ट दिन तक नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी उन्होंने उठाई है, वो स्टोरी उन्होंने फॉलो अप की है। अनलेस उनका प्रोफाइल चेंज कर दिया जाए, वो अलग चीज है, उनका प्रमोशन हो जाए, वो दूसरी कंपनी में चले जाए, अलग चीज है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो अपनी स्टोरी उठाता है, वो जब तक खत्म नहीं होती वो उसको फॉलो करता है। ऐसा ही होता है। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो उन सारे केसेस में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन सब में उनकी फैमिली मेंबर्स ने आके उठाया, किसी की जरूरत नहीं हुई, उन्होंने लड़ा और जस्टिस मिला। इस केस में कोई भी छोड़ देगा ना, तो आई डोंट बिलीव कि सुशांत की फैमिली छोड़ देगी। सुशांत की फैमिली अब तक पिक्चर में नहीं है, तो उसके बाद आ जाएगी। जब कोई नहीं होगा तब फैमिली होगी। लेकिन जस्टिस मिलना होगा तो जस्टिस तो जरूर मिलेगा, चाहे कोई साथ में खड़ा हो या ना हो, चाहे मैं स्टोरी करूं या ना करूं, चाहे मैं शोज करूं या ना करूं, ये जस्टिस तो मिलेगा। मेरे शोज करने के कारण कुछ नहीं होने वाला है, आपके खड़े होने के कारण कुछ भी नहीं होने वाला है। होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। बट वेट फॉर द सीबीआई टू कम एंड टेल यू व्हाट दे हैव इन्वेस्टिगेटेड। अभी तो उन्होंने बोला ही नहीं कि मेरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। अभी तो फैमिली ने नहीं डिसाइड किया कि आगे क्या करना है। Let CBI conclude and then you decide. These are the things I'm sharing so that you know exactly how it all functions. Arushi has still not got justice. That's how you view it. But at the end of the day, उनके नौकर को फंसा दिया था, राइट? आरुषि तलवार केस में आपको याद है 3 नौकरों को पकड़ लिया था, 3 लोगों को। वो तीनों इनोसेंट थे ना, कोर्ट ने उनको छोड़ा था। अल्टीमेटली गिल्टी किसको माना गया? फादर और मदर को। अब वो कोई भी कहानी सुना ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट रिमेन्स कि कोर्ट ने फादर और मदर को ही गिल्टी माना। उन तीनों जिनको की अरेस्ट किया था सीबीआई ने, उनको छोड़ दिया क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो इनोसेंट नहीं फंसा, वो तीनों इनोसेंट थे। वरना ये लोग पावरफुल लोग थे, तीनों को फंसा सकते थे। लेकिन कोर्ट ने तीनों को नहीं फंसाया। कोर्ट ने माना कि जो कुछ भी हुआ उसका नॉलेज केवल फादर और मदर को ही होगा, क्योंकि घर में सिर्फ 4 लोग थे। ये वैसा ही है जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। प्लीज लॉजिकली 1 मिनट के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए लॉजिकली सोचिए। और कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पुलिस वाला, वो 1 मिनट के लिए सोचे। घर में सिर्फ 5 लोग, एक की डेथ हो जाती है तो किसको पता चलेगा? बाकी 4 लोगों को, राइट? आरुषि तलवार केस इज अ फाइन केस, गुड दैट यू हैव पॉइंटेड इट आउट। एक फाइन केस है। उस घर में कितने लोग थे? 4 लोग। एक हेमराज नौकर, एक आरुषि तलवार, एक उसकी मदर और एक उसके फादर। और मारे कौन गए? आरुषि तलवार और हेमराज, दोनों मर गए। बचे कौन? फादर और मदर। तो घर जब बंद है, कमरा लॉक्ड है, सब कुछ बंद है, तो फिर किसको पता होगा? छोड़िए किसने किया, मैं मैं क्यों ब्लेम करूं? कोर्ट इज देयर टू डिसाइड। बट पता किसको होगा? जो घर में है। तो इन 4 को ही तो पता होगा जो सुशांत के घर में थे। लॉजिकली जस्ट अप्लाई योर ब्रेन। अगर सुसाइड हुआ तब भी और मर्डर हुआ तब भी, मैं बार बार कहता हूं, अगर सुसाइड भी है तब भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस इन 4 पे बनना चाहिए।
ये चारों तुरंत गिरफ्तार हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि 3.5 घंटे का तक इनका अपना एडमिशन है, ये लोगों ने खुद एडमिट किया है कि 3.5 घंटे तक हम लोग नॉक कर रहे थे, 3.25 घंटे तक। अब आपके पास एक और ओपिनियन है जो कि सुशांत के सो कॉल्ड साइको एनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट का है, सुजैन वॉकर, जिन्होंने कहा कि सुशांत नीडेड अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग। सच है झूठ मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर ये बात सही है कि ही नीडेड कांस्टेंट मॉनिटरिंग, तो फिर ये चारों लोग 3.25 घंटे तक क्या डफली बजा रहे थे? इनको तो तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए उस ग्राउंड पर भी कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। तो जो फैमिली का एफआईआर है उसके बेसिस पे भी इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन आज तक इनको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वेट कीजिए, एवरीथिंग विल हैपन, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर जस्टिस मिलना होगा सुशांत को तो बगैर किसी शख्स के मिलेगा, बगैर किसी आदमी के मिलेगा। जब कोई नहीं होगा अचानक मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलना होगा तो सारी जमात खड़ी हो जाएगी ना, तब भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो, उसकी किस्मत, उसका काम, उसकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि इस केस में क्या होगा। सब छोड़ देंगे, फैमिली नहीं छोड़ेगी। दिस इज माय एक्सपीरियंस। फैमिली विल 100% स्टैंड विद हिम, और जब सब चले जाएंगे तब फैमिली खड़ी हो जाएगी। सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट फाइल तो करने दीजिए। फाइल कहां किया है? हो सकता है सीबीआई चार्जशीट फाइल कर दे, तब आप क्या बोलेंगे? एम आई डन? नो। I've already shared the link. How many times should I share it? I've already shared it so many times. If you go back, you will get it. So when you people have fought for 2 years, आप लोगों ने कैंपेन 2 साल चलाया है, तो why are you giving it up or thinking of giving up now when there's a government change? Now there's a new hope. Wait and watch and see how it happens. People are saying they can't join. I don't know what is the problem because I've already shared the link. I've shared it again. We are doing the speak up Q&A for after a long time, or maybe the link is not working because I was talking to you. So अब जब मैं रुक गया हूं तो शायद अब काम करेगा. I hope Ruchi is there. Ruchi was the person. Yeah, I guess so. Ruchi आप ही कह रही थी ना? Issue. Yeah, Issue. I hope you find some logic in what I'm saying. I hope she is there or gone off to sleep. I don't know. But I just wish and hope that she is listening and she finds some logic in what I'm saying. So if you please do let me know if you find what I'm saying is logical. Payal is saying can't join. I am just waiting for 2 more minutes and then I shall close the session. Now I don't know how should I put this video on air because it is Q&A, but it's only me talking. So okay, let's wait for 2 more minutes and then we shall close the session. A very interesting subject to study. Please understand. Sushant Singh Rajput mysterious death case is a very interesting subject to follow. आप अगर इसको स्टडी करेंगे ना तो वो बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे जो जिंदगी में आपने कभी नहीं सीखी होगी। ये एक ऐसा केस है जिसमें सब कुछ है, सब कुछ। इस केस को आप जितना निकालिएगा उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं करता नहीं हूँ मनोहर कहानियां, मैं मसाला चीजें करता नहीं हूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें कर सकता हूँ, बट बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम रेगुलेटेड and I want to be regulated, not just I am regulated, I want to be regulated. I don't want to flout the rules, I don't want to cross the line, इसलिए मैं नहीं करता। वरना सुशांत सिंह राजपूत केस एक ऐसा केस है जिसमें इससे ज्यादा एंगल किसी भी केस में नहीं मिल सकता। इसमें सब कुछ है, इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, एंगर है, डर है, मतलब फियर है, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ है इसमें, फ्रस्ट्रेशन है, खुशी है, दुख है, सब कुछ है। ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें इतने सारे इमोशंस एक साथ होते हैं? ये इकलौता केस है जिसमें 2 साल में मैंने सारे इमोशंस आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस किए। इट कांट बी, इट इज अ रेयर केस वेयर पीपल आर सो डीपली कनेक्टेड। रिस्पेक्ट दिस केस बिकॉज दिस केस हैज taught all of us a lot of things, especially I think I have been taught a lot of things because मैंने virtually 3 साल जर्नलिज्म नहीं की थी, रोक दी थी because I was occupied with my domestic work. This is one case which revived me as a journalist because till then I was not active on social media. अब मैं YouTube को as a professional channel use करता हूँ and I am established now as a journalist. Political area is my strength, but वो अब मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिससे मैं एस्टैब्लिश हुआ हूँ दैट इज सुशांत सिंह राजपूत केस। और 2 साल एक केस को लेकर सस्टेन करना
is not an easy job. It is an extremely difficult job. Okay, Shu, thanks. So good. Nice to hear from you that you're waiting for CBI. Please wait. I don't think people are able to connect. So let's close the session. Thank you so much for watching. Stay connected. Stay safe. Let's see what the new government does, because there's a new government, there's a new hope, and there is a new possibility in Sushant Singh Rajput case and Disha Kasadian case. The two cases which are extremely mysterious in its nature. One doesn't know what happened in both these cases. So let's wait that what happens with Mr. Shinde taking over as the chief minister and Mr. Devendra Fadnavis taking over as the deputy chief minister. Let's see whether we get to some kind of a movement in this case or not. We'll be back to talk something more interesting in the tomorrow. And till then, stay connected, stay safe. Come back tomorrow. We'll be talking about something else. Thanks a lot for watching.